अब हम दूसरे किताब पे चलते हैं, विच इज द गेम ऑफ लाइफ। और उसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं, पावर ऑफ वर्ड्स एंड पावर ऑफ थॉट्स। तो कल हमने एक वो किया था, मतलब दो दोस्त थे, वो दोस्त बोलता था हमेशा दैट कम लेट्स डू आवर ओल्ड फैशन टॉक, मतलब लेट्स गो, ऐसे बोलते हैं ना हम, पुराने दोस्त जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं उनको ऐसे ही बोलते हैं ना, चल लेट्स रीलिव द ओल्ड मोमेंट्स। और रिलीव ओल्ड मोमेंट से, लेकिन उस दोस्त का मतलब था कि पुरानी बातें ऑफ मिजरी विजरी वो सब डिस्कस करते हैं। तो जो दूसरा दोस्त था कहता है मैंने नहीं आना तेरे घर ओल्ड फैशन टॉक करने, मुझे न्यू फैशन टॉक्स करने हैं, विच मीन्स एवरीथिंग दैट वी वांट इन लाइफ, यू नो। तो कल बहुत क्यूट सा वो एक्सपीरियंस था। सो नाउ विल कंटिन्यू एंड द ब्यूटिफुल शिवानी इज रीडिंग फॉर अस फ्रॉम सिंगापुर। सो ओवर टू Good यू शिवानी। morning. Uh, Curses, like chickens, come home to roost. If a man wishes someone bad luck, he is sure to attract bad luck himself. If he wishes to aid someone to success, he is wishing and aiding himself to success. The body may be renewed and transformed through the spoken word and clear vision, and disease be completely wiped out of the consciousness. The metaphysician knows that all disease has a mental correspondence, and in order to heal the body, one must first heal the soul. The soul is the subconscious mind, and it must be saved from wrong thinking. In the 23rd Psalm, we read, He restoreth my soul. This means that the subconscious mind or soul must be restored with the right ideas, and the mystical marriage is the marriage of the soul and the spirit, or the subconscious and superconscious mind. They must be one. When the subconscious is flooded with the perfect ideas of the superconscious, God and man are one. I and the Father are one. That is, he is one with the realm of perfect ideas. He is the man made in God's likeness and image or imagination, and is given power and dominion over all created things, his mind, body, and affairs. It is safe to say that all sickness and unhappiness come from the violation of the law of love. A new commandment I give unto you: love one another. And in the game of life, love or goodwill takes every trick. Yeah. So here what we've studied is that हमारा जो soul है, that is likened to the subconscious mind. So you must be hearing this word again and again in every book that we've done so far about the subconscious mind. So subconscious mind मतलब हमारा दिल, हमारा soul. That is what it means. And super consciousness is the God. Subconscious is connected to the super conscious. जो मैं आपको बोलती हूँ ना, आत्मा ही परमात्मा होती है, because आत्मा परमात्मा से connected होती है। ठीक है। सो इसीलिए बी वेरी अवेयर ऑफ द, बिकॉज यू नो समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी एज ह्यूमन बीइंग्स वी कैरी नेगेटिव इमोशंस, grudges and resentment. Suppose somebody has done anything bad to you, so we do get revengeful. So but then we are, I think, beyond that stage of taking a revenge. मतलब बदला तो हम लोग अब नहीं लेंगे क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में बहुत रीप्रोग्रामिंग हो गई है, लेकिन हम रिजेंटमेंट कैरी कर सकते हैं. So what I want to advise in these cases is that suppose if you really don't like a particular person, you don't have to go and talk to that person, that's okay. But don't carry a grudge. Because वो क्या होता है कि हमारे जो जितने भी कार्मिक अकाउंट्स हैं पहले वाले, है ना, जिनको हम किस्मत बोलते हैं, किस्मत ही बोलते हैं ना इसको, कि मेरी किस्मत में ये है, तो कोई चीजें हमारे साथ पैटर्न की तरह हो रही हैं, पैटर्न की तरह हो रही हैं, बिकॉज वी स्टिल होल्ड द ग्रज एंड वी आर स्टिल फीलिंग बैड अबाउट इट, एंड मे बी वी डिड समथिंग इन द पास्ट लाइफ टाइम, वी डोंट नो. ओके, बट इन दिस टाइम, इन दिस लाइफ टाइम, योर थॉट्स आर गॉड. द मोमेंट यू चेंज दैट इन टू द ब्लेसिंग मोड, जो हमने कल पढ़ा था ना, use your thoughts and words only to heal, bless and prosper. इस लाइन को टैटू कर लो. ये मैंने सेशन के बाद कल अपने जर्नल में भी लिख ली थी. ठीक है. यूज योर वर्ड्स ओनली टू ब्लेस, हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर, इन दैट ऑर्डर. ये लिखा हुआ था कल. So that way we will be very aware about the thoughts and the words going here and there.
अगर हमको किसी से रिजेंटमेंट है, रिजेंटमेंट या कोई भी चीज है, द रिलेशनशिप इज गोइंग रॉन्ग वन आफ्टर द अदर, समथिंग इज नॉट हैपनिंग, it really doesn't matter. Go inwards. You are precious. You are a gem. You are a treasure house. You are the creator. You are God. You don't have to for a second feel that, oh God, this is happening wrong in my life. हर चीज बहुत अच्छे और बड़े रीजन के लिए होती है इफ यू आर यूजिंग योर थॉट्स एंड वर्ड्स फॉर अ गुड कॉज। तो अपनी आत्मा की सफाई, स्क्रबिंग हमेशा करते रहो। ठीक है, जैसे ही कुछ ऐसे हुआ, थिंक गुड, ब्लेस। गुस्सा आया, ब्लेस। मैंने आपको बताया था ना, कल इतनी देर ट्रैफिक जाम में मैं पूरी टाइम ब्लेसिंग मोड में थी, डेलिबरेटली करना पड़ रहा था, हो नहीं रहा था बिकॉज मुझे थोड़ा एंग्जाइटी जैसा लग रहा था। ठीक है, बट ब्लेसिंग मोड में रहो, आप ब्लेस करते रहो, ब्लेस करते रहो। थैंक यू एवरी पर्सन हु इज हियर, यू नो, अचीव्स द टारगेट, जहां पे भी जा रहे हैं वो उनका गोल पूरा हो जाए, काम पूरा हो जाए। एवरी पर्सन हियर इज सेफ, दे प्रॉस्पर्ड बाय डे एंड नाइट। आप ऐसे थॉट्स रखोगे, अब आपने अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, जो शायद नेगेटिव कर्मा के रूप में, ग्रहों के रूप में आपकी जिंदगी में इस वक्त मौजूद थे। हो सकता है, सुना है ना हमने कि ये वाला ग्रह ठीक नहीं काम कर रहा, जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो दे माइट टेल यू समथिंग लाइक दैट कि ये वाला ग्रह ठीक से काम नहीं कर रहा। ग्रह इज नथिंग बट सम कर्मा दैट यू मे हैव डन unknowingly in the past lifetimes, because of which you're born in a certain set of astrological this thing placements in this lifetime. But स्क्रिप्चर्स नहीं तो लिखा है, ये सारी चीजें बाइबल में भी लिखा हुआ है कि कितने भी नेगेटिव कर्मास पिछले जन्मों के हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जैसे ही आप अपने थॉट्स एंड वर्ड्स को राइटली, राइचियसली चूज करते हैं, आपके वो कार्मिक अकाउंट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, बिकॉज आप एक नई डेस्टिनी को क्राफ्ट कर रहे हैं। तो जो ग्रह जो आपको जो अपोज कर रहा था वो आपका एलाय बन जाता है। मैंने ये पढ़ा हुआ है, दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड इट इज साइंस, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज साइंस। ओके, और जो आपके पैदा होने पे चार्ट्स थे वो आज थोड़ी मौजूद है ना। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सपोज 40 साल के हो, दीज 40 years you have lived a different kind of a life, and in the last 2 years that you've been in the journey of gratitude, love and reprogramming of the subconscious mind, your thought process is very altered, है ना। आपका thought process बहुत बदल चुका है अभी तक। अब आपको गुस्सा आएगा भी तो आप अपने आप पे वर्क करोगे और आप बोलोगे नहीं, मैंने ऐसे करना है, मुझे होपोनोपोनो करना है, मुझे ब्लेस करना है, मुझे ऐसे सोचना है, नहीं मुझे बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय ग्रोथ इन सक्सेस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय ग्रोथ इन सक्सेस, थैंक यू यूनिवर्स दैट ऑल द पीपल हियर आर हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स दैट इस पर्सन को बहुत विजडम आए, है ना। आप उसको ब्लेस कर रहे हो कि उसके अंदर विजडम आए क्योंकि उसने आपका बुरा किया है। तो आपका थॉट प्रोसेस तो बिल्कुल बदल गया है। अब वो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएंगे, अच्छा सोचना, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है। अब आप अच्छा सोचोगे, है ना। तो अब आपने अपने सोल लेवल पे अपने आप पे वर्क किया है और आपने उसकी स्क्रबिंग करी है बहुत अच्छे से। And because of that negative thing that were coming into your life as a pattern, you have neutralized them, rather you have implanted something very powerful and a very powerful energy. So in the quantum field, that karma that you may have committed in the past lifetimes, that's already neutralized. You don't, not just neutralize ka matlab plus 1 minus 1 is equal to 0. No, it will get into the plus zone now. Because every time now that is happening, and you are like, thank you, universe, I'm so grateful. Thank you, I love you. Thank you, I love you. So now you have totally transformed your thought process. So at the soul level, at the subconscious level, you have done the cleansing. Now that negative karma, जो शायद पता नहीं जब भी था, हमको उसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी में अकॉर्डिंग टू द थॉट एंड वर्ड्स दैट यू आर प्लांटिंग, उस हिसाब से अब कार्मिक अकाउंट सेट होगा। नया नया बैंक बैलेंस खुला है जिसमें सिर्फ प्लस आएगा, है ना। जो पुराना बैंक बैलेंस था वो खत्म हो गया है, वो बैंक का अकाउंट ही बंद हो गया आपका, आपने बंद कर दिया है सबकॉन्शियस लेवल पे। आपने वो वाला बैंक अकाउंट बंद कर दिया जिसमें माइनस में जा रहा था अकाउंट लगातार, जिसके कारण आपको जब भी कुछ अच्छा करना था तो आपको पैसे नहीं मिल रहे थे क्योंकि वो माइनस में अकाउंट जा रहा था, बिकॉज ऑफ कोई हरकत जो आपने पता नहीं कब की थी विदाउट रियलाइजिंग। बट आप अब अलग जर्नी में हो,
है ना? अब फ्लोरेंस कोवल शिन, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, रोंडा बर्न, शक्ति गवेन, ये सब है ना हमारी जिंदगी में। तो अब ये हमको गलत रास्ते पे नहीं चलने दे रहे। अगर हम जेन्युइनली इनकी टीचिंग्स को प्रैक्टिस करें, वी आर पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस ऑन अ डेली, इन ऑन आवर डेली अफेयर्स, वी हैव क्लोज दैट अकाउंट जो नेगेटिव में जा रहा था, और उसको हमने पे ऑफ कर दिया। पे ऑफ कर दिया, उसमें -100 था, हमने 100 रुपीज पे ऑफ करके उस अकाउंट को क्लोज कर दिया, और हमने नए बैंक में नया अकाउंट खोला है, जिसमें सिर्फ बरकत है, जिसमें सिर्फ इंक्रीमेंटली यू आर रिसीविंग, जिसमें लॉ ऑफ इंक्रीज वर्क कर रहा है ना? एंड नाउ यू विल नेवर हैव द डर्थ ऑफ एनीथिंग इन योर लाइफ, इट विल ओनली बी एन इंक्रीज। इसीलिए कभी भी किस्मत से डरो मत, आप बस अपनी use your thoughts and words only to heal, bless and prosper that we had studied yesterday, है ना? ध्यान से जब किताब पढ़ेंगे ना, तो हमको ये चीजें याद रहती है। जैसे मुझे क्रिस्टल क्लियर सारे एक्सपीरियंसेस याद है। अभी हम एक और एक्सपीरियंस पढ़ने वाले हैं। हाँ जी शिवानी। For example, a woman I know had for years an appearance of a terrible skin disease. The doctors told her it was incurable and she was in despair. She was on the stage and she feared she would soon have to give up her profession and she had no other means of support. She, however, procured a good engagement and on the opening night made a great hit. She received flattering notices from the critics and was joyful and elated. The next day, she received a notice of dismissal. A man in the cast had been jealous of her success and had caused her to be sent away. She felt hatred and resentment taking complete possession of her, and she cried out, "Oh God, don't let me hate that man." That night, she worked for hours in the silence. She said, "I soon came into a very deep silence. I seemed to be at peace with myself, with the man, and with the whole world. I continued this for 2 following nights, and on the third day, I found I was healed completely of the skin disease. In asking for love or goodwill, she had fulfilled the law. For love is the fulfilling of the law, and the disease, which came from subconscious resentment, was wiped out." Thank you so much, Shivani. We'll be reading only so much today. Thank Thank you. you for beautiful voice and for being the beautiful you. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। जो चीज मैंने अभी आपको समझाई थी ना कर्मास के बारे में, कि हम लोग अपनी डेस्टिनी से, अपनी एस्ट्रोलॉजी से बहुत डरते हैं। अब ये जो लेडी थी, ये स्टेज आर्टिस्ट थी, इसको कोई डिजीज थी स्किन की, और इसको लगता था, और ये स्टेज परफॉर्मर थी। स्टेज परफॉर्मर्स के लिए लुक्स मैटर करते हैं ना, तो और इसको स्किन डिजीज थी, इसको लग रहा था मेरी डिजीज फैलती जाएगी, मुझे स्टेज से हटा देंगे, मेरा कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, whatever. But then she challenged herself because she was the treatment patient for for Florence Cowell. मतलब ये जो ऑथर है, इनकी वो थी, क्लाइंट थी, ठीक है? सो उसने, बट देन शी डिसाइडेड दैट नो, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस, आई विल नॉट बी स्केर्ड ऑफ माई मतलब कि मुझे स्टेज से उतरना पड़ेगा। तो थोड़ा उसको स्टेज फ्राइट हो रहा था अपनी हेल्थ कंडीशन के कारण। सो बट देन शी गेव हर बेस्ट परफॉर्मेंस, लोगों ने बहुत ज्यादा अपलॉड किया उसको, एंड शी वॉज सो थ्रिल्ड। और वो स्टेज से वापस आई, जब स्टेज से वापस गई तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर उनका एक और कास्ट था जो थोड़ा डोमिनेंट पर्सन था, वो इतना जेलस हुआ इनको, क्योंकि बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन एंड लव मिल रहा था सबसे इनके परफॉर्मेंस को। तो उसको वो बहुत ज्यादा जेलस हुआ, और उसने डिसमिसल का नोटिस दे दिया इसको, मतलब इसको कास्ट से ही हटा दिया, और जो भी स्टेज शो था उससे हटा दिया, ठीक है? फिर इसको पता लगा कि उस आदमी ने इसको हटवाया है, तो वो वापस जब घर गई, तो उसको, किसी को भी बुरा लगेगा ना कि उसको उसने स्टेज से डिसमिस करवा दिया, जस्ट बिकॉज वो जेलस था, क्योंकि सब लोग इसकी तारीफ कर रहे थे लड़की की। तो उसने उस पर्सन के लिए बार बार जाके बस एक ही चीज बोली, ओ गॉड डोंट लेट मी हेट दैट मैन, मतलब मेरे अंदर आओ और मुझे उसको, आई डोंट वांट टू हेट दैट मैन, है ना? उसने अपने आप को ये बोला, और वो पूरी रात ऐसे करती रही। दैट होल नाइट शी वर्क फॉर आवर्स इन साइलेंस। She was working on herself. She was working to bless him. She was sending him love.
like, or and of course like peace and all that. So she was working on maintaining her peace of mind by sending blessing to that man जिसने इसको काम से हटवा दिया था, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल चाहती नहीं थी कि मैं उस हेट्रेड में रहूं। हेट्रेड आ रही थी इसको, एज ए ह्यूमन बीइंग किसी को भी आएगी ना, बट देन शी वर्कड एट हर सेल्फ, एंड देन शी सेड दैट मैं साइलेंस में बैठी, एंड शी केम इनटू अ वेरी डीप साइलेंस जहां पे सिर्फ पीस विद हर सेल्फ था एंड पीस विद दैट मैन। शी मैनेज टू सेंड हिम सो मच लव इन स्पाइट ऑफ जो उसने हरकत की थी, उसके बावजूद इसने उस आदमी को बहुत सारा प्यार और पीस भेजा, है ना। सो देन शी वॉज एट पीस विद द मैन, जब उसको लगा कि आई एम टोटली पीसफुल विद हिम एंड विद द होल वर्ल्ड। सो उसके बाद उसने आ, बाकी जो नेक्स्ट 2 रात थे, 2 रात को फिर से ऐसे किया, मतलब टुडे शी डिड, टुमारो एंड डे आफ्टर। आफ्टर 2 more nights ऑन द थर्ड डे उसको लगा दैट अब मैं उस हेट्रेड से पूरी तरह से हील हो गई हूँ, ठीक है। एंड शी वॉज नॉट जस्ट हील्ड विद दैट, शी वॉज ऑल्सो हील्ड विद द स्किन डिजीज दैट शी हैड टोटली एंड कंप्लीटली। मतलब सोचो ब्लेसिंग कितनी मैटर करती है। इसका मतलब है कि मेटाफिजिकल रीजन था उसकी डिजीज का, है ना, सम कर्मा दैट शी मे हैव डन। सो हु केयर्स, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि हमको तो पता भी नहीं होता हमने क्या किया है जिसके कारण हमको कोई इशू आ रहा है लाइफ में, है ना। वी डोंट नो अबाउट इट, वी डोंट नो हमने क्या किया है, बट रियली डजंट मैटर। आप अपने अभी के कर्मों पे ध्यान दो जो इस वक्त है। इसीलिए कहते हैं ना, द पावर लाइज इन द प्रेजेंट मोमेंट, द पावर ऑफ नाउ, बाय कार्ट टोले। इट्स अ बुक। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा नाव में रह के आप कितने जन्मों के कर्मों को चेंज कर सकते हो। सो उसने नाव पे वर्क किया, उसको ये लगा मेरा सामने जो इंसान है मुझे उससे हेट्रेड हो रही है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। फिर उसने 3 nights वर्क किया, पूरे दिन रात 3 दिन, है ना। उसके बाद चौथे दिन उसकी स्किन डिजीज अपने आप हील होती गई, एंड एवरीथिंग स्टार्टेड, शी वॉज हील्ड कंप्लीटली ऑफ द स्किन डिजीज। सो इन आस्किंग फॉर लव और गुडविल शी हैड फुलफिल्ड द लॉ, क्योंकि वो लव रेडिएट कर रही थी ना उस आदमी के लिए जिसने उसको काम से हटवाया था। तो उसके बाद एवरीथिंग गॉट, डिजीज ठीक हो गई, एवरीथिंग वाज डन एंड शी वाज एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। इसीलिए कहते हैं कि अपने मोमेंट में राइट नाउ सोचो, है ना, पीछे मुड़ के मत देखो। द फूल्स लुक बैक, you don't have to look back into your life and see that that happened wrong, this happened wrong, that person did this to me, or whatever it is. Just work on your now and heal and bless and prosper everybody who is coming into your in your orbit, whether you are at work, whether it's in your neighborhood. They might not be nice people, maybe you've had like spat with them, but it really doesn't matter. It's your life that matters. अगर आपको अपने आत्मा और परमात्मा को खुश करना है और उनकी शक्तियों को अपनी जिंदगी के अंदर खींचना है ना, then you have to have that mental attitude of blessing others no matter what they have done. उनका कार्मिक अकाउंट उनके साथ है ना, भगवान तो किसी को छोड़ते नहीं है। तो वो अपने आप भगवान अपने तरीके से रियलाइज करेंगे, है ना। भगवान इज नेवर हार्श, अपने तरीके से वो ध्यान भी रखेंगे, वाइल रियलाइज भी करा देंगे कि ये गलती की है उसने। हमको अपने हाथ में ये सब लेने की जरूरत नहीं है। Everybody's karma stays with them. Our karma will stay with us. So work on your karma. Just work on the now. Now has the power to transform millions of eons of the lifetimes that you may have lived before this one. It will all get changed, transformed totally depending upon abhi aapki psyche kya hai. What are you thinking right now? What words? What is going on in your head? Have you genuinely loved and forgiven? Are you genuinely using your thoughts and words to heal, bless, and prosper? है ना। अपने आप धीरे धीरे हम बहुत अच्छे इंसान बनते जा रहे हैं, और ये मुझे बहुत दिखता है बिकॉज आप लोगों से, मैं बहुत लोगों से बहुत टाइम से मिल रही हूँ और बात होती रहती है कभी, तो मुझे इतना ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है अपने आप में और आप सब में, है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ ही अलग हो गया है, क्वालिटी ऑफ थॉट अलग हो गया है, isn't it? So this is how it is like. So thank you so much. This is all we have.